Okay. Right. So is my voice clear? कोई मसला तो नहीं है आवाज में? Yes, sir. ठीक. That's good. So yeah, let's begin then. So basically, what we are talking about is we're talking about degrees of freedom, right? हमने इसी को कंटिन्यू करना है टॉपिक को एंड देयर इज सम बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशंस आफ्टर दिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थिंग. उसके बाद थोड़ी सी मॉडलिंग अप्रोच को देखेंगे. अगर एक फिजिकल सिस्टम होता है तो हाउ डू वी मॉडल इट. एंड इफ यू गेट टाइम विल स्टार्ट विद टॉपिक 2 विच इज़ वेरी बेसिक स्प्रिंग्स वगैरह का जो हम जिक्र करेंगे थोड़ा सा एंड विल सी वेयर वी कैन एंड. राइट. तो हमने कल की क्लास में व्हाट वी डिड वाज वी सेड के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फर्स्ट ऑफ ऑल आर ए यूनिक नंबर. राइट. एक यूनिक नंबर होता है हर सिस्टम का एंड इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ variables or generalized coordinates that you can use to define the motion of a system completely, right? That is what we call degrees of freedom. We discussed this quite a lot. ठीक है. हमने examples लेके check किया था. For example, ये pendulum वाली example लेके check किया था. We said कि we can either use theta or we can use x, right? Or we can use y and we can measure, let's say, x from here or y from here, and we can define the same thing using either of the three. तो theta use कर लें या x use कर लें या y use कर लें. We can use either of the three, but we only use one, not all three of them. क्यों? क्योंकि ये तीनों जो हैं they are dependent on one another. तो इनकी डिपेंडेंस जो हमने निकाली थी वो निकाली थी फॉर एग्जांपल कि x square plus y square is equals to L square, where L is the length of the string जिससे pendulum connected है. And we said since there is a triangle forming here, so this is L, this is x, this is y, and this is theta. So there are trigonometric relationships which relate the three quantities as well. ठीक है. तो हम लोग जी वालेकुम सलाम जी we only use one of the three to define the system. That is key, right? हम लोगों को अगर let's say कि 2 degree freedom system में आना है तो we have to select two variables, two generalized coordinates which are independent of one another. Those quantities could be let's say y1 अगर हम इसका measure करना चाह रहे हैं, or we can measure this thing, this is y2, this works. We can do the same thing with x1 and same thing with x2 as well. तो अगर मैं इसको I can do this. I can use theta 1, theta 2. I can define a theta from here. So let's say this is theta 2 prime. So just to differentiate between theta 2. So the only point you need to remember is कि जो भी quantities होंगी they have to be independent of one another. तो हमने class में बोला था कि an incorrect set would be x1 and theta 1. These are two variables, but they are not generalized coordinates. ये दोनों generalized coordinates नहीं हैं because generalized coordinates need to be independent of one another. तो ये वाले केस में this is not correct. ठीक है. ये एक और सिस्टम आ गया. दो सिस्टम्स हमें बने हुए. बोथ ऑफ देम आर 3 डिग्री फ्रीडम सिस्टम्स. ठीक. अब हमें कैसे पता कि 3 डिग्री फ्रीडम सिस्टम्स हैं? फॉर एग्जांपल व्हाई इज दिस अ 3 डिग्री फ्रीडम सिस्टम? हाउ डू यू चेक? इन ऑर्डर टू चेक what we can do is we can try to stop everything and just try to move a single mass. So अच्छा, first of all I'm assuming कि ये चीज this disk has an inertia. Let's call this J. तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं इसका मोशन भी स्टॉप कर देता हूं तो मैं कहता हूं x1 मैं फिक्स कर रहा हूं 0 पे, x2 मैं फिक्स कर रहा हूं 0 पे, तो दीज आई एम होल्डिंग देम, तो मैं इनको ग्राउंड कर रहा हूं. ठीक है. इन दोनों चीजों को मैंने ग्राउंड कर दिया. इज इट पॉसिबल फॉर मी टू रोटेट द डिस्क? तो एक्चुअली इट इज पॉसिबल बिकॉज दोनों साइड पे स्प्रिंग लगा हुआ है ना. तो इफ आई ट्राई टू रोटेट द डिस्क लाइक दिस इट कैन रोटेट. दोनों तरफ स्प्रिंग है. ये एक तरफ मूव करूंगा, एक तरफ का स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, दूसरी तरफ का कंप्रेस होगा. इट इज पॉसिबल टू मूव द डिस्क independent of the two masses m1 and m2, right? The same thing you can test. ये आपने छोटे छोटे से experiments जो है ना mentally खुद से कर रहे हैं in order to find the degrees of freedom. So for example I can set that this theta needs to be 0 and this x2 needs to be 0. ये मैंने दोनों को fix कर दिया. Can I move x1? Yes I can, because x1 भी दोनों तरफ से spring से connected है. अगर मैं x1 को move करूंगा तो the springs are just going to allow the motion. Springs मेरे motion को allow करेंगे, तो x1 is independent of x2 as well as theta. And same thing you can finally do for x2 as well. तो x2 is only connected with x1 through k3. तो अगर मैं x1 को fix कर देता हूँ,
x2 is still allowed to move. So all three of them, theta, x1 and x2, all three of them are actually independent coordinates. So तीनों जो हैं independent motions है, तो this is a 3 degree of freedom system. अब इसी चीज को आप इधर देखिए इस वाली फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या हो रहा है, इस फिगर में दिस इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपके पास दो पिलर्स हैं और हर फ्लोर को हमने मॉडल किया हुआ है एज अ सिंगल मास। तो दो पिलर्स हैं, इनको हम कैंटिलीवर बीम्स अज्यूम कर सकते हैं। दिस यू कैन ऑसिलेट लाइक दिस मींस कि ये चीज टू एंड फ्रो मूव कर सकती है हॉरिजॉन्टली। तो कैंटिलीवर बीम, इफ यू रिमेंबर, जो मेरी कैंटिलीवर बीम होती है, हाउ डज इट एक्चुअली वाइब्रेट कैसे करती है कैंटिलीवर बीम? कैंटिलीवर बीम की वाइब्रेशन जो होती है, दे आर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। सो दिस इज अ मास एंड दिस योर लेंथ L, तो अ कैंटिलीवर बीम वाइब्रेट्स लाइक दिस, अप एंड डाउन मोशन होता है उसका, ठीक है। तो इस बीम को यू कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट विद अ सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम। किसी भी 1 डिग्री फ्रीडम सिस्टम को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी कैन डू द एग्जैक्ट सेम थिंग हियर एज वेल। तो यू हैव व्हाट यू हैव इसको अगर मैं कैंटिलीवर बीम के टर्म्स में इस तरह ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा ना, तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज कि मेरे पास एक बीम है, ठीक है, इसके बाद एक मास m1 लगा हुआ है, इसके साथ मेरे पास एक और बीम कनेक्टेड है, उससे मास m2 कनेक्टेड है, उसके बाद एक और बीम कनेक्टेड है, उससे मास m3 कनेक्टेड है। दिस इज बेसिकली दिस स्ट्रक्चर हियर। इसमें आपको यू हैव टू इग्नोर ग्रेविटी बेसिकली, क्योंकि हमारा वर्टिकल सिस्टम था, तो अगर मैं ग्रेविटी को इग्नोर करूंगा तो देन दीज टू आर एक्चुअली इक्विवेलेंट। ठीक हो गया। अब तो लेट्स जस्ट रिमूव दिस। व्हाट आई वांट टू गेट एट कि अगर आप किसी 1 डिग्री फ्रीडम को सिंपल स्प्रिंग और मास सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द सेम थिंग यू कैन डू विद एनी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो फॉर एग्जांपल दिस वन आई कैन रिप्रेजेंट with a simple spring K1 attached to M1, then a spring K2 attached to M2, then K3 which is attached to M3, and this entire thing is grounded. अब ये पूरा सिस्टम इन्वर्टेड है, तो this is K1, this is K2 and this is K3. सही है? तो this is how the system is made. आपने इस पूरे सिस्टम को, इट इज पॉसिबल कि आप इस पूरे फिजिकल सिस्टम को एक सिंपल स्प्रिंग मास अरेंजमेंट से रिप्रेजेंट कर दें। अब हमारा काम क्या रह जाएगा? हमारा काम रह जाएगा कि इक्विवेलेंट मासेस निकालने और इक्विवेलेंट स्टिफनेसेस निकालनी है। कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस सिस्टम को स्प्रिंग मास सिस्टम से रिप्रेजेंट करता हूँ, बेसिकली मैं इसको भी एग्जैक्टली इसी चीज से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इट इज पॉसिबल फॉर मी टू डू दैट, बट मुझे उस केस में ये करना पड़ेगा कि मुझे देखना पड़ेगा कि ये जे है, इसको मैं इक्विवेलेंट मास में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ये दिस इज टॉपिक नंबर 2 फॉर अस, कि हम इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट इनर्शिया, इक्विवेलेंट स्टिफनेस, इक्विवेलेंट डैम्पिंग निकालने की कोशिश करेंगे सिस्टम से। ठीक है, तो दिस इज समथिंग which will come on. Right now we just trying to see कि degrees freedom क्या होती हैं, and everything is actually related to a simple spring mass system. एक और सिस्टम इधर शोन है which has multi degree freedoms. कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? सेम लॉजिक देखें, एवरी मास इज कनेक्टेड टू अदर मासेस थ्रू अ स्प्रिंग, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। सही, अगर कोई रिजिड लिंक कहीं से कनेक्ट कर देना, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं यहां पे एक रिजिड कनेक्शन कर देता हूं, इन दैट केस दीज टू मासेस विल बिकम वन बॉडी। बट ऐसा नहीं है हमारे केस में। हमारे केस में क्या हो रहा है कि एवरी मास इज कनेक्टेड टू अदर मासेस थ्रू स्प्रिंग्स एंड डैम्पर्स। दिस मींस ऑल ऑफ देम कैन मूव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो हम लोगों के पास कितने डिग्रीज फ्रीडम होंगे? जितने मासेस हैं, क्योंकि हम सिर्फ इस वक्त वाई डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग एक्स में इसकी मोशन की बात नहीं कर रहे। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो हमारे पास कितने डिग्रीज फ्रीडम है? 1 2 3 4 5 6 7। So this is a 7 degree of freedom system. A 7 degree of freedom system is going to have 7 natural frequencies, and this is 1 2 3 4 5 6 and 7 natural frequencies. ये उसका वही frequency domain में जिस तरह हमने कल भी कुछ examples देखी थी, उसी तरीके से इसमें शो किया हुआ है। Just to highlight कि ये चीजें आगे आएंगी, but we need to reinforce this concept कि जितने degrees of freedom होते हैं उतनी natural frequencies भी होती हैं सिस्टम के अंदर। इस चीज में कोई मसला है तो प्लीज ask me, otherwise I can move ahead. ओके राइट, अब मैं यहाँ पे कुछ 2 एग्जांपल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड यू नीड टू टेल मी कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे। तो विल डिस्कस दैट। तो एक एग्जांपल हमारे पास ये वाली आ गई, एक एग्जांपल हमारे पास आ गई ये वाली, राइट।
अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव अभी भी सेम है. वी वांट टू फाइंड आउट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ दीज टू सिस्टम्स. कैसे चेक करेंगे? चेक करने का वही तरीका है कि आप सबसे पहले देखेंगे क्या क्या मोशन होंगे. फॉर एग्जांपल दिस डिस्क इज गोइंग टू हैव अ रोटेशन, तो इसकी डिग्री फ्रीडम, इसका जो वेरिएबल होगा वो थीटा होगा, इसका जो वेरिएबल होगा वो लेट्स से x होगा, y होगा. सेम थिंग हियर, इधर दिस डिस्क इज गोइंग टू हैव अ थीटा एंड दिस मास इज गोइंग टू हैव एन x और अ y. लेट्स जस्ट यूजुअली हम x ही रिप्रेजेंट कर देते हैं अगर मास एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो आप डिग्री फ्रीडम कैसे चेक करेंगे? डिग्री फ्रीडम चेक करने के लिए वी आर गोइंग टू होल्ड वन ऑफ देम and see whether the other can move freely. So we are going to, let's say, hold x. We are going to set x equals to 0 and we are going to see whether the disk can rotate, and that is possible. Why? Because we have a spring here. ठीक है, स्प्रिंग के होने से आपको वो फ्रीडम मिलता है कि इफ यू ट्राई टू मूव दिस डिस्क, what is going to happen, ये springs दोनों साइड पे लगे हुए, ये stretch होंगे and they are going to allow motion of the disk independent of this mass m. So for this system the degree of freedom is 2. इस वाले पे आ जाएं, सेम चीज ट्राई करेंगे and you can probably guess what is going to happen. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको फिक्स करता हूं, since this is rigid, यहां पे मैंने स्प्रिंग नहीं ड्रॉ किया, I should have written this is a rigid link. तो if this is a rigid link, then if I fix this, this thing is fixed. So these two cannot move independent of one another. सही है? तो ये what if we pull down on the rigid link? Won't the spring expand? No, but stretch. No, but if you hold m, if you have fixed the location of m, this rigid link is not going to allow it won't allow this to move, right? तो ये बेसिकली बात थी. और ये रिजिड लिंक इससे कुछ कहते हैं कि पुली से कैसे कनेक्टेड होगा, प्रॉब्लम यहाँ से एक पिन कनेक्शन है, हुआ है पिन कनेक्शन, ठीक है. तो इफ इट कम्स डाउन इट इज एबल टू रोटेट, बट इफ इट इज हेल्ड हियर इट इज गोइंग टू स्टे लाइक दिस बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ दिस थिंग टू कम डाउन. सही है ना? तो अब अगर मैं इन दोनों सिस्टम की स्प्रिंग मास रिप्रेजेंटेशन बनाना चाह रहा हूं तो इस मेरे लेफ्ट वाले सिस्टम की स्प्रिंग मास रिप्रेजेंटेशन इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू वर्क ऑन. कि मैंने एक रोटेशन को भी यहाँ पे लीनियर सिस्टम से रिप्रेजेंट कर दिया. हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क? वी कैन एक्चुअली कन्वर्ट ऑल ऑफ दिस. दिस इज पॉसिबल टू डू. ठीक है, सेम थिंग इज हेयर. हम लोग करेंगे क्या इस केस में? जो हम कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल दिस, क्योंकि हम ग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा m1 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस डिस्क एंड m2 इज रिप्रेजेंटिंग दिस मास. ठीक है, तो K2 तो K2 ही हो जाएगा, M2 मेरा M हो जाएगा. M1 needs to be derived using J and K1 needs to be derived using K1. This I need to let's call this K11 because they are not going to be the same. And this is basically the second topic. I'm just introducing it to you. ये कैसे निकालते हैं? Why is it different? This will all come up in the next topic and we're going to cover this in detail. जो second system है, second system, although there is a inertia J and there is a mass M, but this is just a 1 degree freedom system. So this is going to have an equivalent mass and this is going to have an equivalent stiffness and we need to find out what these are. जो मेरा equivalent mass होगा इसमें mass M का भी influence होगा और inertia J का भी influence होगा, and we are going to look for this in the next topic and we are going to find out, right? तो इस पॉइंट पे व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड और जो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जिस चीज में क्वेश्चन है तो आप क्लियर कर लें, इज हाउ वी लुक फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम. कि हमने जो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करके देखे थे कि एक चीज को होल्ड किया, दूसरा मूव कर सकता है नहीं कर सकता. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के इंडिपेंडेंस में तो मसला नहीं है. इफ यू गेट दिस देन वी आर एक्चुअली गुड. तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क मी. अस्सलाम वालेकुम सर. ये पूछना था कि सर ये जो मास इक्विवेलेंट और के इक्विवेलेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिजिड लिंक. लाइक इफ देयर वाज नो रिजिड लिंक इट वुड हैव बीन द सेम एज इन द फर्स्ट केस. यस, बेसिकली क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि दिस डिस्क इज गोइंग टू रोटेट एंड दिस मास इज गोइंग टू ट्रांसलेट, बट दे आर गोइंग टू मूव टुगेदर. तो दिस बोथ ऑफ देम फॉर्म अ 1 डिग्री फ्रीडम सिस्टम. ठीक है, तो 1 डिग्री फ्रीडम सिस्टम का तो ये मॉडल होता है ना. अब इफ दिस इज द मॉडल एंड यू हैव मल्टीपल masses and multiple inertias in the system,
हाउ डू वी कन्वर्ट दैट इन बिग सिस्टम इनटू दिस सिंप्लीफाइड सिस्टम? उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है कि इन सब का कंबाइंड इफेक्ट एक सिंगल मैस में कैसे इंट्रोड्यूस करना है. आपके पास सिस्टम के अंदर हो सकता है कि आपके पास लेट्स से कि यहाँ पे इट्स पॉसिबल कि यहाँ पे आपके पास you also have a torsional spring attached. This is KT. तो आपके पास K और KT का combined effect इस simple system में कैसे आएगा? That is the K equivalent. और ये सब चीजें we are going to determine this. Basically potential और kinetic energy equivalence से निकालते हैं and we are going to cover this topic, right? तो ये है इसी वजह से कि rigid link है तो they are forming a single degree of freedom. सही है सर. ठीक है, ओके. तो ये वाली चीज डिग्री फ्रीडम वाली चीज थोड़ी कॉन्सेप्चुअल थी. अभी हमें थोड़े से और फंडामेंटल क्लासिफिकेशन वगैरह कवर करनी है. दैट इज वेरी वेरी बेसिक. वो देख लेते हैं क्या है. हमारी वाइब्रेशन सिस्टम्स कैन बी डिस्क्रीट एंड कैन बी कंटिन्यूस. अभी तक हम जो भी सिस्टम्स करते हुए आ रहे हैं ना यहाँ पे, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली डिस्क्रीट सिस्टम्स. क्यों डिस्क्रीट सिस्टम्स का क्या मतलब होता है कि आपकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एंड द masses are simplified disks and point masses which are arranged in between springs and dampers and things like that. ठीक है, तो these are all discrete systems. Continuous systems क्या होते हैं? For example, a cantilever beam is a continuous system. So every point in this cantilever beam has a different displacement. तो इस point की displacement कुछ और है, इस point की displacement कुछ और है, इस point की displacement कुछ और है. But this is still a single degree of freedom system. अब ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए. अगर हर पॉइंट की अपनी डिस्प्लेसमेंट है तो हाउ इज दिस अ सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम? उसकी वजह ये होती है क्योंकि बीम की जो कैंटिलीवर बीम के डिफॉर्मेशन की प्रोफाइल है दैट इज फिक्स्ड. तो अब अ कैंटिलीवर बीम इज ऑलवेज गोइंग टू डिफॉर्म इन द सेम वे. एक सर्टेन अप्लाइड फोर्स F के लिए यू कैन फाइंड आउट के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होती है. You can find out what is the maximum displacement and you can find out y as a function of x. आप ये एक सिंगल फोर्स के लिए पूरा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, एक सिंगल फोर्स है, आप एक सिंगल इक्वेशन निकाल सकते हैं जो कि पूरी डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सके. What this basically means is कि although every single point has a different displacement but they are not independent of each other. Since the shape is defined, they are all coupled together. सही है. तो कंटिन्यूस सिस्टम और डिस्क्रीट सिस्टम का फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि कंटिन्यूस सिस्टम्स के अंदर देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और डिस्क्रीट के अंदर देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. हमारा कोर्स जो है दिस इज फोकस्ड ऑन डिस्क्रीट सिस्टम्स. वी आर नॉट गोइंग टू कवर कंटिन्यूस सिस्टम. दैट इज यूजुअली अ ग्रेजुएट लेवल कोर्स जो कि बीम्स की वाइब्रेशंस और स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन उनको स्टडी करते हैं. तो आवर कोर्स इज फोकस्ड ऑन डिस्क्रीट वाइब्रेशंस. हम लोग केस में अगर बीम आएगी भी तो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू अ डिस्क्रीट सिस्टम लाइक दिस. वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लीटली मॉडल द वाइब्रेशंस ऑफ द कंटिन्यूअस सिस्टम. ठीक है, हम लोग इसको डिस्क्रीट सिस्टम में कन्वर्ट करके फिर स्टडी करेंगे. सो this is one point. This is one of the classifications of vibration. Discrete हो सकती हैं, continuous हो सकते हैं systems आपके. सर इसका हर पॉइंट पे एक डिफरेंट के निकलेगा ना? लाइक हर पॉइंट पे एक डिफरेंट स्टिफनेस होगी ना? क्योंकि इसके या फिर इसकी एक ही स्टिफनेस, एक इक्विवेलेंट स्टिफनेस एक ही होगी. एक ही होगी. ठीक है, एक इक्विवेलेंट स्टिफनेस होगी कैंटिलीवर बीम की. ठीक है, सही. ओके. एक क्लासिफिकेशन आपकी ये हो सकती है कि वेदर द वाइब्रेशंस इज फ्री और फोर्स्ड. फ्री वाइब्रेशन जो होती है फॉर एग्जांपल पेंडुलम का केस है, स्प्रिंग मास सिस्टम का केस है. आप इनिशियल कंडीशन थोड़ी सी प्रोवाइड करते हैं, यानी आप पेंडुलम को थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं या आपका स्प्रिंग मास सिस्टम में मास को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं एंड यू जस्ट लीव इट एंड द सिस्टम इज गोइंग टू ऑसिलेट. फिजिकल सिस्टम्स आफ्टर सर्टेन टाइम डाई आउट हो जाते हैं बिकॉज देयर इज एनर्जी लॉस बिकॉज ऑफ डैम्पिंग. आइडियल स्प्रिंग मास सिस्टम्स होंगे, आइडियल पेंडुलम होगा, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू टू ऑसिलेट फॉर एवर बिकॉज इसमें किसी किस्म की कोई डैम्पिंग नहीं होती आइडियल सिस्टम. बट फिजिकल सिस्टम्स आर गोइंग टू स्टॉप इवेंचुअली. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनिशियल डिस्टर्बेंस होना जरूरी है एंड देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स. कोई एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस से ये चीज ऑसिलेट नहीं कर रही. ये सिर्फ चीज, इसको आपने इनिशियल डिस्टर्बेंस दी, इसका मतलब ये होता है कि आपने इसमें इनिशियली कोई एनर्जी इंट्रोड्यूस कर दी. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी कि आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, या फिर आपने पेंडुलम केस में इसको लिफ्ट किया तो उसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ गई.
मास स्प्रिंग सिस्टम के केस में इसको स्ट्रेच किया तो इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ गई, एंड द सिस्टम इज कंटिन्यूअसली जस्ट डूइंग वन थिंग, इट इज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज व्हाट इज वाइब्रेशंस बेसिकली। ठीक है, आपके जो दूसरी टाइप की एक इनिशियल कंडीशन हो सकती है, दैट इज अ शॉक। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग मास सिस्टम, उसको आप एक हैमर ले, आप यू डोंट नीड टू स्ट्रेच इट, आप हैमर लेके जस्ट हिट द मास विद द हैमर, वो इनिशियल जो आप उसको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन गिव एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एज वेल। उसको आप इम्पल्स दे देते हैं, आप सडन इसको जर्क देते हैं, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करना शुरू कर सकता है। ठीक है, आप पेंडुलम के साथ भी यही काम कर सकते हैं। आप पेंडुलम बिल्कुल स्टेशनरी हो, आप उसको किसी चीज से हिट करें, इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑसिलेटिंग। जब आप उसको हिट करते हैं, हिट करने की वजह से इवन इफ यू स्टॉप एट द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे उसकी पोजीशन 0 है, उसमें आपकी एनर्जी तो ट्रांसमिट हो गई ना बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट हमारा आ गया फ्री वाइब्रेशन का, इनिशियल कंडीशन होनी जरूरी है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो इसका ऑपोजिट केस जाहिर है क्या होगा, फोर्स वाइब्रेशन होगा। फोर्स वाइब्रेशन में सिस्टम इज oscillating under the influence of an external force, and this is we are going to study this thing in detail। ठीक है, सही से स्टडी करेंगे इसको। in a special case, और ये हमने बात पिछली क्लास में भी की थी कि when our forcing frequency, तो let's assume कि मेरा सिस्टम है स्प्रिंग मास सिस्टम, उस पे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं यहां पे, and this force is actually a sinusoidal force। अगर मेरी ये फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो सिस्टम इज गोइंग टू स्टार्ट टू रेजोनेट, और रेजोनेंस का फिनोमेना ये होता है कि ऑसिलेशंस कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अगली स्लाइड में आई हैव एन एग्जांपल व्हिच इज समथिंग यू मस्ट हैव सीन ऑलरेडी। तो वो एक रेपिटेशन ही होता है, मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट दिस टकोमा नैरोस ब्रिज का जो कोलैप्स हुआ था। दिस इज अ वेल नोन हिस्टोरिकल इवेंट, इसकी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी हुई होंगी। बेसिकली है क्या, एक सस्पेंशन ब्रिज है। when the engineers designed this thing, they did not account for the effect of wind on the system's vibrations। के wind और का इस wind की वजह से सिस्टम के अंदर कोई रेजोनेंस तो इंट्रोड्यूस नहीं हो जाएगी। They did not account for that, and what happened was that at a certain range of speed, 65 to 75 kilometers an hour, system resonate करना शुरू हो गया, and because of that the bridge eventually collapsed। और उसकी छोटी सी वीडियो है, we can actually view this thing, and this I'll just come here just to show you that this was not a small vibration going on, this was very very severe vibrations। ठीक है, पूरा ब्रिज, क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज है, it is not actually rigidly fixed। ठीक है, हैंग हुआ हुआ ब्रिज है, although it has concrete there but steel structure होता है mainly। ठीक है, तो but the vibrations are very very severe, and this is the phenomenon of resonance। vibrations start slow and this start to increase। damped system में जो होता है, क्योंकि physical system में damped system के अंदर we are going to study later on के amplitude infinite नहीं होता, but it increases to its maximum value and it stays there। but वो इतना ज़्यादा होता है कि the fatigue failure can occur very very quickly, because fatigue, if you remember, क्या होता है, fatigue दो वजह से failure हो सकता है। आप number of cycles बहुत ज़्यादा increase कर दें या फिर amplitude को बहुत ज़्यादा करते हैं। इस केस में आपका amplitude बहुत ज़्यादा हो गया तो the system will fail under very low number of cycles। So this we'll just skip ahead and see how the system eventually failed। So it broke apart। ठीक है, and this is just the influence of wind। You must have seen this thing, but just to relate it to the course, this is a very good example to highlight the importance of the study of vibrations when you're designing something। This does not need to happen on such a large scale। This can happen on simply a machine which is mounted on a foundation on your floor। Maybe your vibrations are going to transmit in the floor and it is going to cause cracks in the floor। ठीक है, so इस पे अगर कोई डिस्कशन किसी ने करनी है, वी कैन डू दैट।
otherwise I can move forward. So if anybody has anything to say about this, please go ahead. Okay, right. एक क्लासिफिकेशन और होती है हमारी, उसको हम कहते हैं अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड वाइब्रेशंस. ठीक है, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन एज यू कैन इमेजिन, इसमें डैम्पिंग जीरो हो जाती है, और डैम्प्ड वाइब्रेशन में देयर इज डैम्पिंग, सो देयर इज एनर्जी लॉस. अनडैम्प्ड वाइब्रेशन अगर फ्री वाइब्रेशन है, दिस इज फ्री का प्लॉट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो फ्री वाइब्रेशन. ठीक है, फोर्स वाइब्रेशन कैन गो ऑन फॉर एवर. फ्री वाइब्रेशन है, आपने सिस्टम को इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी, सो दिस इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, and you release it, the system is going to oscillate and it is going to continue to do so forever because there is no energy loss in the system. ठीक है, इस पॉइंट पे सिस्टम को आपने स्टॉप किया हुआ है, इसको पोटेंशियल एनर्जी दे दी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में. जब सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि सिस्टम अब यहाँ पे बहुत तेजी से मूव कर रहा है. And then it crosses the equilibrium position, go to the other side. अब यहाँ पे सिस्टम की स्पीड स्लो होती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, till eventually it stops here. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, and it repeats the cycle again. तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, then potential energy maximum, then kinetic energy maximum, and it goes on. इसी के अंदर अगर हम किसी किस्म का एनर्जी लॉस इंट्रोड्यूस कर दें तो एवरी सक्सेसिव पीक इज स्मॉलर देन द लास्ट वन. तो एक साइड पे हमारी जो पीक थी, तो लेट्स से इफ दिस इज 2 यूनिट्स, this might be 1.5 units and this might be 1.25 units and this might be 1.1 units. so ये कम होती जा रही है. सही है, तो हर पीक जो है पिछली वाली से कम होगी. एंड वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वन साइड, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ साइड्स. हर पीक जो है वो पिछली पीक से छोटी होगी बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम. सिस्टम के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, सारी पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसमिट नहीं हुई, कुछ एनर्जी इस पार्ट के अंदर यहाँ पे लॉस हो गई इन टर्म्स ऑफ डिसिपेशन इन द डैम्पिंग इन द सिस्टम. बाकी जो बची थी वो काइनेटिक एनर्जी बन गई. अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में जब इस पॉइंट पे पहुंचे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कम है बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास लॉसेस होने शुरू हो गए. तो एवरी सक्सेसिव पीक इज एक्चुअली स्मॉलर देन द लास्ट वन एंड इवेंचुअली द सिस्टम डाइज आउट. ठीक है, तो दिस इज वन क्लासिफिकेशन, और इस क्लासिफिकेशन में हम काफी फोकस करेंगे, हम दोनों चीजें पढ़ेंगे. विल स्टडी अनडैम्प्ड एज वेल एज डैम्प्ड वाइब्रेशंस इन दिस कोर्स. सही, लीनियर वाइब्रेशंस हो सकती हैं, नॉन लीनियर वाइब्रेशंस हो सकती हैं. लीनियर वाइब्रेशंस आर बेसिकली व्हेन योर कंपोनेंट्स आर लीनियर. सो फॉर एग्जांपल यू हैव अ लीनियर स्प्रिंग. A linear spring is basically a spring which follows the Hooke's law. Your damper also needs to be linear, which means it should follow the simple relationship of damping जो हमें पता है कि c x dot या c times velocity की जो damping की relationship होती है, आपका damper को वो relationship follow करनी चाहिए. ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चीज नॉन लीनियर है, so let's say कि your spring is actually following a relationship like this, it is possible कि सारे स्प्रिंग्स लीनियर ना हो. ठीक है, इट इज पॉसिबल एंड इट इज वेरी लाइकली कि आपकी डैम्पिंग लीनियर ना हो, तो आपका सिस्टम की वाइब्रेशंस को हम नॉन लीनियर क्लासिफाई करते हैं. अगेन वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस, वी आर गोइंग टू ओनली स्टडी लीनियर वाइब्रेशंस. ठीक है, तो हमारा जितने भी सिस्टम समझ लेंगे उनमें हम लीनियर एजम्पशन के साथ लेके चलेंगे. ठीक है, सो दिस इज वन क्लासिफिकेशन दैट वी हैव. वाइब्रेशंस कैन बी डिटरमिन्ड. हाँ जी बेटा, लीनियर वाइब्रेशन की एक और एग्जांपल बता सकते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम के अलावा? बेटा देखो, एनी सिस्टम, देखो आप किसी भी सिस्टम को इवेंचुअली स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना. तो वट एवर सिस्टम यू हैव, यू कैन कन्वर्ट इट टू दिस फॉर्म. अभी तक हम स्प्रिंग मास कर रहे थे, आप उसमें डैम्पिंग भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस कैन हैव multiple dampings and multiple stiffnesses. ठीक है, क्योंकि अगर आप लेट्स से आप एक कैंटिलीवर बीम की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक स्प्रिंग मास डैम्पिंग आ जाएगी. फिजिकल सिस्टम में मटेरियल की इंटरनल डैम्पिंग भी होती है, वो आ जाएगी. इफ द डैम्पिंग एंड द स्टिफनेस दैट वी आर मॉडलिंग इज लीनियर, देन वी विल ट्रीट इट एज लीनियर वाइब्रेशन. लेकिन अगर उसमें से कोई भी एक चीज है जो कि नॉन लीनियर है, उसको हमें नॉन लीनियर लेना पड़ेगा. तो फिजिकल सिस्टम्स को हम इवेंचुअली मॉडल इसी तरीके से करते हैं, वी कन्वर्ट एवरीथिंग टू दिस फॉर्म. ठीक है, थैंक यू.
राइट एक क्लासिफिकेशन डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम वाइब्रेशन की होती है. अर्थक्वेक इज एन एग्जांपल ऑफ अ रैंडम वाइब्रेशन. ठीक है. फर्क क्या है? फर्क ये है कि डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन के अंदर यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट अ सर्टेन टाइम. तो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन है. इट इज नॉट साइनोसॉइडल, इट इज बट इट रिपीट्स इटसेल्फ. तो अगर मैं इसको यहां से देखूं तो इट स्टार्ट्स टू रिपीट इटसेल्फ एवरी टाइम. यहां से होगा कि नॉट यहां से नहीं होगा. तो इट गोज ऑन, इट कम्स हियर एंड इट स्टार्ट्स हियर. जी जी. डिटरमिनिस्टिक इज लाइक सिस्टमैटिक. डिटर्मिनिस्टिक इज पीरियोडिक. आपका जो है अगर आपको अपनी रिस्पॉन्स का पता है कि मेरे किस पॉइंट के ऊपर क्या एम्पलीट्यूड होगा या क्या वेलोसिटी या क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, देन इट इज डिटर्मिनिस्टिक. तो अ सिंपल डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम इज अ साइन वेव. सो यू नो एग्जैक्टली कि किस टाइम के ऊपर मेरा, तो दिस इज एक्स, तो आई नो एग्जैक्टली कि टाइम 2 सेकेंड्स के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या एम्पलीट्यूड होगा. एंड दिस डज नॉट नीड टू बी a sine wave, it can be anything. So it could be that it dies out like this and then starts again. ठीक है. तो exact same thing है, but it is repeating. So if it is repeating, I can still, if I know one period, अगर मुझे इसका एक period की information है तो मुझे इसकी complete time की information. तो this is deterministic. So मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि अगर आपका एक पीरियड आपको पता है तो यू कैन आइडेंटिफाई कि आपका किसी भी टाइम के ऊपर आपकी वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड्स या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटीज क्या हो. तो दिस इज डिटर्मिनिस्टिक. बट इन द केस ऑफ लेट्स से एन अर्थक्वेक, यू डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. तो दिस इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ड्रिवन प्रोसेस. इसका एनालिसिस भी हम नहीं करेंगे. दिस इज अगेन रैंडम वाइब्रेशंस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कोर्स which is usually taught at graduate levels. ठीक है. और this is not part of the course. So हम लोग जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं, we are focusing on deterministic vibrations. ठीक है. तो we'll know हम लोग क्या random vibration की example double pendulum को हम ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफी chaotic उसका वो होता है. Chaotic does not mean it's a chaotic motion, but it's still deterministic. You have a solution for that. ठीक है. No, sir, but you cannot determine its end position like correctly. You can if you know it's chaotic. कि chaotic की definition ये होती है. Chaotic की definition ये होती है कि if you change the initial conditions, the response can be very very different. But you can exactly plot how, given one set of initial conditions, you can exactly plot कि एक double pendulum की oscillations किस तरीके से change होंगी. उनका आप solution निकाल सकते हैं. Chaotic means that it is affected, the type of motion is greatly affected by the initial conditions. And there are different simulations for that. Double pendulum की simulations आप खुद भी try कर लें. I'll bring that in the next class. और ये I'm definite about this that chaotic is still determinate. ठीक है. क्योंकि अगर आप इसके there are simulators available. आपने simulator देखा होगा ना जब भी आप कह रहे हैं chaotic. अगर simulator है and you can exactly plot कि how it is moving, then it is not random. हाँ, सही कह रहा हूँ. ठीक है. तो it's not random. तो it is deterministic. Chaotic is can still be deterministic. Random means कि you do not know what is going to happen next. It's a probability phenomena. तो probabilistic phenomena चल रहा है यहाँ पे. तो this you can't solve this thing in time without knowing the complete signal. ठीक है. सही है सर. तो ये difference होता है. अच्छा, एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन की हो सकती है. अगर सिस्टम्स, अब मैं बार ले लूं तो उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस हो सकती हैं. तो दिस स्प्रिंग मास सिस्टम हैज लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस. ट्रांसफर वाइब्रेशंस ये होती हैं कि आपके सिस्टम जो है अलोंग एक्स एक्सिस है और वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर हो रही हैं. तो बीम हैज ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस. ठीक है. दिस इज टॉर्जनल वाइब्रेशंस क्या हो सकती हैं कि आपके पास एक सिंपल सा वो है, एक शाफ्ट है जिसकी स्टिफनेस K और फ्लाईव्हील लगा हुआ विच इज J, और इसकी वाइब्रेशंस जो है वो along the axis rotation में हो रही है. तो दिस इज टॉर्जनल वाइब्रेशन. दिस इज वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट कैन हैपन. तो दिस इज ऑल वेरी वेरी बेसिक थिंग्स. इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना जो कि हमने अभी देखनी है वो है
कि how we actually convert a system starting from physical phenomena into that spring mass model. तो हमारे पास हमें करना ही होता है कि हम सबसे पहला काम जो करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर वो मॉडलिंग करते हैं. हम एक फिजिकल सिस्टम उठाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं into a model which consists of springs, masses and dampers. Then we derive their equations, then we solve those equations and then we analyze the results and interpret the results. ठीक है. तो आज की क्लास में we are going to see two examples of this thing. अभी हम देखते हैं. ठीक है. बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स होंगी and we are not going to actually solve it and they might seem very complicated. All of that will come on eventually later in the courses. Right now we're just trying to see how to start with a physical system or how we can convert it into a idealized mathematical model. सही है. हमारे elements क्या होंगे जिनकी बेस पे हमने सिस्टम को मॉडल करना. We have springs, dampers and masses. ये चीज आपको पता है. Just for the sake of revision यहाँ पे लिखी हुई है. The displacement of spring determines कि वो कितनी force spring exert कर रहा है. Same thing in the case of a damper. The force reaction of a damper is determined by the velocity and the force reaction of a mass is determined by its acceleration. ठीक है. तो तीन हमारे पास बेसिक मैकेनिकल एलिमेंट्स हैं, स्प्रिंग्स, डैम्पर्स एंड मासेस. तीनों की जो फोर्स रिएक्शंस हैं तीन डिफरेंट क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहे हैं. एक डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, एक वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और एक एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. एंड दिस इज गोइंग टू हैपन एट अ कांस्टेंट वैल्यू. तो दैट इज की कि अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो द स्प्रिंग इज गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स. अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो द डैम्पर इज स्टिल गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स. अगर आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो द मास इज स्टिल गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स. ठीक है. अगर आपका कंटिन्यूअस मोशन है तो लेट्स से कि आपके पास आपकी डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. ठीक है. इन दिस केस द वेलोसिटी इज आल्सो कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड द एक्सेलरेशन इज आल्सो कंटिन्यूअसली चेंजिंग. तो इस केस में तीनों के रिएक्शंस आ रहे होंगे. ठीक है. तो वी जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई कि अगर आप कांस्टेंट भी कर देना इवन देन उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का रिएक्शन आ रहा होगा. अगर आप वेलोसिटी कांस्टेंट कर देंगे तो मास का कोई रिएक्शन नहीं होगा बट डिस्प्लेसमेंट का होगा. बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन आएगा. लेकिन बिकॉज एक्सेलरेशन इज नाउ जीरो तो मास का कोई रिएक्शन नहीं आएगा. ठीक है. तो यू गेट दिस पॉइंट. वो फंडामेंटल पॉइंट है. अच्छा, एक चीज ये कि द मीटिंग इज अबाउट टू एंड, तो प्लीज रीजॉइन एंड वी कैन कंटिन्यू डिस्कशन. वी हैव 10 मिनट्स. ओके बेटा, स्क्रीन विजिबल है ना? Yes sir. Yes, sir. Okay. So continue. Let's continue forward. हमने अब क्या करना है? हमने सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास सबसे बेसिक सिस्टम. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस. दिस इज जस्ट रिटन हियर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन एंड देन वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस टू मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. स्प्रिंग मैस सिस्टम सबसे बेसिक सिस्टम होता है. इसकी वाइब्रेशन का क्या हम क्या मोशन से मोशन को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस थिंग? कैन यू समबडी टेल मी? एक स्प्रिंग मैस सिस्टम अगर ऑसिलेट कर रहा होता है उसके मोशन को व्हाट डू वी कॉल इट? To and fro motion, sir. No, it's simple harmonic motion, right? Simple harmonic motion कहते हैं ना? Yes sir, I'm sorry. Yes. ठीक है, simple harmonic motion कहते हैं. तो simple harmonic motion क्या होता है? Simple harmonic motion ये होता है कि your displacement is going to be defined in terms of a sinusoidal function और sinusoidal function. तो इसका अगर मैं derivative ले लूँगा तो I'm going to get what? I'm going to get my velocity. और अगर मैं इसका भी डेरिवेटिव ले लूँगा तो आई एम गोइंग टू गेट माई एक्सेलरेशन. एंड दिस एक्चुअली गिव्स अस द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट योर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द displacement and it is going to be directed in the opposite direction of the displacement. So this is what actually a simple harmonic motion is. कि आपकी acceleration is dependent on displacement. ठीक है. और and it is in fact this, let's just call this thing, because this entire thing is your small d, so this becomes minus omega square d. So this is directly proportional to d minus sign के साथ. तो acceleration is directly proportional to the displacement and is directed
towards the equilibrium position mainly, ठीक है, is always directed towards the equilibrium position, ठीक है. तो this is the simple harmonic motion. इसका टॉपिक आएगा जिसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. अगेन सेम पॉइंट, एक सिंगल नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है एक 1 डिग्री फ्रीडम सिस्टम में, बिकॉज ये तो एक सिंगल नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस सिस्टम इज √k/m. राइट, नाउ वी कम टू एक्चुअल सिस्टम्स. अब ये एक सिस्टम क्या है, एक फोर्जिंग हैमर का सिस्टम है. सो हम एक ऊपर से हैवी मास एक एनुअल के ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं, एंड we want to model this thing. This might not exactly produce a vibration, but this is a physical system which we want to model and see what possible approaches we can have to model this physical system. ठीक, अब इसमें क्या क्या masses है हमारे पास. एक mass ये है top, this is a heavy mass which drops here, which can actually you can use to forge things. ठीक है, anvil है which is again a metal block, large metal block होता है. इसको अपनी जी सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. ओके, इज इट बेटर? माइक दूर होगा. अब बेहतर है? चलो ठीक है, सही आ रही है सर. ओके ओके ओके, अपना वॉल्यूम चेक करें, मे बी दैट इज अ इशू. आई विल ट्राई टू स्पीक अप. ठीक है, मैं थोड़ा सा जोर से भी बोलता हूँ. तो आपके पास अब हमें मॉडल क्या करना है. हमारे पास दिस इज एक्चुअली नॉट द सिस्टम, दिस इज एन इनिशियल कंडीशन. ये आपके क्या हो रहा है, ये जो है ये सिस्टम के ऊपर ड्रॉप होगा एंड इट इज गोइंग टू ट्रांसमिट इट्स एनर्जी इनटू दिस एनुअल. ठीक, हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम ये एनुअल है विच इज अ मेटल ब्लॉक. एक इलास्टिक पैड यहाँ पे लगा हुआ है विच इज देयर टू आइसोलेट दिस एनुअल फ्रॉम योर फाउंडेशन. ठीक है, अब हमें इस सिस्टम को मॉडल करना है. वन अप्रोच इज दैट यू मॉडल द एंटायर सिस्टम टुगेदर. तो हमें इस पूरे सिस्टम को, सो दिस एंटायर थिंग I can model like this. तो मेरे पास क्या है, मैंने अपने एनुअल को, अपने फाउंडेशन ब्लॉक को, पूरी चीज को मैंने एक सिंगल मास से रिप्रेजेंट किया. तो मैंने एनुअल का मास और फाउंडेशन ब्लॉक का मास को ऐड कराया. तो दिस इज माय टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम. और सॉइल जो मेरी इसके नीचे है, इसमें कोई ना कोई डैम्पिंग का इफेक्ट भी होगा सॉइल में, और इसके अंदर कोई ना कोई स्टिफनेस का इफेक्ट भी होगा. आई कैन फाइंड दैट आउट एंड आई मॉडल दैट थिंग इन टर्म्स ऑफ अ डैम्पिंग एंड अ स्प्रिंग. This thing is an additional mass which drops on top of this. और जब ये इसके ऊपर, अब मैंने फॉर एग्जांपल एक सर्टेन हाइट से, लेट्स से 1 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप किया, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि ये जब यहाँ पे हिट करेगा, इसके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी. तो दैट काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड इनटू दिस ब्लॉक, और वो काइनेटिक एनर्जी हमारी इनिशियल कंडीशन बन जाएगी. ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. बट दिस इज नॉट द ओनली वे यू कुड मॉडल दिस थिंग. So this is what I want to get at, कि एक सिस्टम को मॉडल करने के लिए there can be multiple approaches. So the next approach could be कि आप इसको 2 डिग्री फ्रीडम सिस्टम से मॉडल कर लें. तो because there is an elastic pad here, this is going to have some stiffness. तो इस stiffness को I can model, and since this is an actual rubber material, इसकी कोई ना कोई damping भी होगी. So I can model the damping as well. So damping of the elastic pad and stiffness of the elastic pad. इसके ऊपर क्या चीज है, इसके ऊपर एनुअल है, एनुअल का ब्लॉक है. Anvil and the foundation block are connected through the elastic pad, and the foundation block is connected to your ground, which is the part which is not doing anything. एक theoretical ground आपने लिया हुआ है, that is connected to your foundation block through this soil layer जो कि डैम्पिंग और स्टिफनेस प्रोवाइड कर रही है. हुआ क्या, हुआ ये कि एक फिजिकल सिस्टम था, उस फिजिकल सिस्टम को वी मॉडल्ड इट 2 डिफरेंट वेज, एंड द क्वेश्चन नाउ कम्स अप कि क्या इनमें से कोई अप्रोच गलत है? ऐसा नहीं है, दोनों अप्रोचेस ठीक है. दिस इज अ सिंपलर अप्रोच, दिस विल बी फास्टर, दिस विल हैव मोर एरर्स. 1 डिग्री फ्रीडम सिस्टम जो है, 2 degree freedom system is also a very big approximation. This is an actual physical system, एक continuous system है. उस continuous system को हमने 2 degree freedom system पे approximate किया है. This will still have errors when you consider the actual physical systems, but this second system, this system is better than this system. क्यों? क्योंकि इसमें हम इस elastic pad का effect भी introduce कर रहे हैं, इस सिस्टम में नहीं कर रहे. केस बी में हम ये वाला काम नहीं कर रहे. ठीक है, तो
ये इस पूरे केस में व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ऐसा नहीं है कि इनमें से एक चीज सही है एक चीज गलत है, बोथ आर फाइन. इट्स जस्ट द रिक्वायरमेंट कुड बी कि आपने कोई बहुत सिंपल कैलकुलेशन करनी है, फास्ट कैलकुलेशन करनी है, यू कैन मॉडल इज अ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, और यू कैन मॉडल इज अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. इफ यू हैव मोर टाइम यू कैन डू मोर कैलकुलेशंस. नथिंग इज एक्चुअली फिक्स्ड हियर. ठीक है, इसमें कोई ये अप्रोक्सीमेशंस होती हैं, इनको हम आइडियलाइजेशन का स्टेप कहते हैं. दिस आइडियलाइजेशन इज ओपन and this will affect your results, but all of both of these are actual idealizations. अगली स्लाइड के ऊपर एक और सिस्टम है जिसकी हम और ज्यादा आइडियलाइजेशन देखेंगे. तो दिस इज एक्चुअली मैन राइडिंग ऑन अ मोटरसाइकिल. अब इसमें वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हॉरिजॉन्टल मोशन क्या हो रहा है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेशन कैसे होगी. अगर लेट्स से कि कोई बम्प आ जाता है, कुछ आता है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम वाइब्रेट करने की कोशिश करता है, हाउ कैन वी मॉडल इट. ठीक, एक अप्रोक्सीमेशन ये हो सकती है कि मैं पूरे सिस्टम का मास लूं, इक्विवेलेंट मास लगाऊं और इक्विवेलेंट स्टिफनेस दोनों टायरों की और इक्विवेलेंट डैम्पिंग दोनों टायरों की लगा के इसको ग्राउंड कर दूं. दिस इज अ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एंड दिस इज अ वैलिड अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, वैलिड अप्रोक्सीमेशन है. एक अप्रोक्सीमेशन क्या हो सकती है, एक अप्रोक्सीमेशन ये हो सकती है कि मैं बोलूं कि ठीक है, ये मेरी मोटरसाइकिल की पूरी बॉडी है, इसको और राइडर को मैं एक मास बनाऊं. ठीक है, इस टायर को मैं अलग करूं, इस टायर को मैं अलग करूं, तो दिस इज द व्हील, दिस इज द व्हील. इनको अलग करने की वजह क्या है, जिस तरीके से पिछले केस में यहाँ पे इलास्टिक पैड थे ना जिसकी अपनी स्टिफनेस थी, यहाँ पे आपके पास सस्पेंशन है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्टिफनेस भी है, यहाँ पे आपके पास डैम्पिंग भी है, फ्रंट टायर पे भी और रेयर टायर पे भी, दोनों टायरों पे है. तो इस स्टिफनेस और डैम्पिंग को मॉडल करने के लिए वी कैन मॉडल द व्हील्स सेपरेटली, फ्रंट व्हील एंड रेयर व्हील दोनों को मॉडल कर लिया. सस्पेंशन सिस्टम के स्टिफनेस और डैम्पिंग लगा दी फ्रंट की और रेयर की, दोनों की. दे कैन बी सेपरेट, दे डू नॉट नीड टू बी द सेम. तो दिस इज द फ्रंट वन, दिस इज द रेयर वन, यू कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज हियर. और यहाँ पे हमने फिर ये KT जो है, दिस इज टायर स्टिफनेस. तो आपने इस टायर की यहाँ पे जो ग्राउंड के साथ स्टिफनेस बन रही है उसको मॉडल करके इस टायर को मॉडल कर लिया. अब नाउ दिस इज अ बेटर अप्रोक्सीमेशन एज कंपेयर टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसमें कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसमें आपके पास लेट्स से कि ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 1 डिग्री फ्रीडम है और ये 1 डिग्री फ्रीडम. दिस इज 3 डिग्री फ्रीडम सिस्टम. सही है. इसी की एक अप्रोक्सीमेशन और हो सकती है कि मैं आप अपने राइडर को भी सेपरेट कर दें और जो आपकी यहाँ पे सीट है जिस पे राइडर बॉडी के साथ जिसके थ्रू कनेक्टेड है उसकी स्टिफनेस और उसकी डैम्पिंग को मॉडल करना शुरू कर दें. तो दिस विल एड अनदर डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. तो दीज आर ऑल अप्रोक्सीमेशंस दैट वी कैन डू. ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस हम लोग खुद कर रहे होते हैं एंड दीज आर ऑल आइडियलाइजेशंस which help us reduce the system to simple form और जिसके बाद हम सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं. पर यहाँ हमने टायर की डैम्पिंग को अप्रोक्सीमेट किया. अशर आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आई, जोर से बोले. सर आवाज आ रही है? जी अब आ रही है. सर यहाँ हमने टायर की डैम्पिंग आपने नहीं लगाई? यूजुअली टायर की डैम्पिंग इतनी कम होती है कि हम उसको इग्नोर कर दें. दिस इज हाउ वी यूजुअली मॉडल ऑटोमोबाइल्स एंड मोटरसाइकिल्स. बट if you have a value, again this is not invalid. ये एक अप्रोक्सीमेशन थी कि मैंने कहा मैं टायर की डैम्पिंग को 0 अज्यूम कर रहा हूँ, बट इफ यू हैव अ वैल्यू फॉर इट यू कैन ऑलवेज प्लेस इट हियर. मतलब अप्रोक्सीमेशन है ना ये? सारी अप्रोक्सीमेशन है, राइट. ठीक है, ठीक. इस सिस्टम में मैं एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ इन दोनों सिस्टम्स, इसमें और इसमें. वो ये हो सकती है कि ये मैं अभी तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी मोटरसाइकिल की जो पूरी बॉडी है ये हॉरिजॉन्टल रहती है, बट आई कुड से कि मेरे पास इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट और इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है. तो उससे क्या होगा, उससे मेरी बाइक जो है वो रोटेशन भी हैंडल करना शुरू हो जाएगी. तो जस्ट बाय आई डिड नॉट एक्चुअली ऐड अ मास, मैंने मास नहीं ऐड किया, मैंने सेम मास रखे हुए, बट आई इंक्रीज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. इस केस में भी यही काम कर सकता हूँ. So I can consider that this thing and this point, these 2 points have 2 different degrees displacements और जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है उसकी जो रोटेशन हो रही है यहाँ पे वो रोटेशन को भी हम कैटर कर सकते हैं. ठीक है, तो we can call this x rear and x front and this is a valid approximation of the system.
अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यूनिक नहीं होते. अब मैं इसी सिस्टम को जिसमें मैं रोटेशन को कैटर कर रहा हूँ एक और तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ. वो ये है कि मैं इसको हटाता हूँ. आई से कि मेरे पास यहाँ पे बाइक का एक्स है and with that I add a theta here. Now this is again handling the exact same thing. बिल्कुल सेम चीज को हैंडल कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहां पे अब xf लूंगा तो in reality your xf can be found out using this theta, because आपके पास ये लेंथ जो होगी बाइक की फ्रंट की साइड की लेंथ ये नोन होगी. तो ये अगर आपको थीटा पता होगा और तो आप ये निकाल सकते हैं कि फ्रंट कितना ऊपर जा रहा है. सिमिलरली आप ये भी निकाल सकते हैं कि आपकी रेयर साइड कितना नीचे जा रही है. तो एक्स थीटा आप ले लें, दिस इज वैलिड. आप एक्स आर एक्स एफ ले लें, दीज आर ऑल्सो वैलिड. आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक्स आर की डिस्प्लेसमेंट ले लें और यहां से थीटा मेजर कर लें, because still these two are independent of one another. अगर आप XR को होल्ड करेंगे तो थीटा कैन स्टिल मूव, the bike can rotate. XF और थीटा भी कभी कॉम्बिनेशन बन सकता है. तो 2 डिग्री फ्रीडम अगर मैं बाइक में इंट्रोड्यूस करा रहा हूं तो द वेरिएबल्स कैन चेंज, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कैन चेंज. ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया बेटा कि हमने कैसे किया वाले पॉइंट को मॉडल? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिकॉज वी आर एक्चुअली डन. We're done with the topic and we can end the lecture. So if you have any confusions here, I have actually a small video here. ये देख लेना please. मैं slides upload करता हूँ. This is just. Sir, अगर मैं हाँ फारूक बोलो. फारूक. और मैं टायर को दो सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है. जी सर. और भी आवाज आ रही है. हाँ वो शायद बैकग्राउंड में कुछ है. यू कैन जस्ट से. मैं ये कहना चाहता था कि तो क्या ये फीजिबल रहेगा? क्या चीज? मैं अगर जैसे आपने पूरे टायर को एक ही सिस्टम कंसीडर किया है ना जी यहाँ पे जी. हाँ बिल्कुल फिजिबल रहेगा. यू नो ये तो मोटरसाइकिल की बात हो रही है. एन ऑटोमोबाइल तो एक गाड़ी शॉक डैम्पर की तरह बिल्कुल बिल्कुल. देखो all of this are valid. अब हाँ एक ऑटोमोबाइल जो होती है ठीक है उसके if I just make like let me go here and let's just make a plate which represents an automobile. There are 4 tires. इसकी 4 डिफरेंट इसकी अप्रोक्सीमेशंस क्या होती है? इसकी एक अप्रोक्सीमेशन ये होती है कि you just model the system like this. Okay, this is the chassis, this is the wheel, this is the tire stiffness, this is the shock absorber, and you model this thing just as a single point पे आप ना एक ही टायर को मॉडल कर रहे हैं, एक टायर को मॉडल कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ क्वार्टर कार मॉडल. आप पूरी गाड़ी को क्वार्टर कार में कन्वर्ट करके मॉडल कर रहे हैं. यू कैन डू द एग्जैक्ट सेम थिंग विद अ कार एंड मॉडल a car like this. This model is known as a half car model. क्योंकि इसमें आप 2 टायर को मॉडल कर रहे हैं, गाड़ी में 4 टायर होते हैं, आप सिर्फ एक हाफ को मॉडल कर रहे हैं. एंड देन देयर इज अ फुल कार मॉडल जिसके अंदर आप चारों टायर्स को मॉडल करके एक 3 डायमेंशनल डायनामिक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो यूजुअली व्हाट पीपल डू इज के दे गो स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले क्वार्टर कार मॉडलिंग करते हैं, उससे रिजल्ट देखते हैं. एंड every time you introduce something you are getting new information. So for example if let's say कि मेरे पास एक स्पीड ब्रेकर आ गया, इसमें मैं एक सिंगल टायर के साथ गाड़ी को मॉडल कर रहा हूँ. तो दिस इज माय कार एंड आई एम मॉडलिंग, दिस इज अ क्वार्टर कार मॉडल. ठीक है, क्वार्टर कार मॉडल. तो दिस इज माय टायर, दिस इज माय शॉक एब्जॉर्बर और ये मेरी कार की बॉडी है और इससे जो है मैं पूरी गाड़ी को इससे मॉडल कर रहा हूँ. तो when the car goes over this, the entire car I'm assuming is passing over this entire speed breaker together. In reality ऐसा तो नहीं होता ना, एक एक टायर जाता है. तो अगर मैं इसी चीज को हाफ कार मॉडल में कन्वर्ट कर दूं, तो if I model it like this, what is going to happen? पहले फ्रंट टायर जाएगा, then it will come down and then rear टायर जाएगा. तो अगर मैं हाफ कार मॉडल से इसी पूरे फिनोमेना को मॉडल कर रहा हूँ, I am going to capture more information. सही है. इससे क्या क्वार्टर कार मॉडल गलत हो गया? ऐसा नहीं है.
उससे सिर्फ कम इंफॉर्मेशन हमें मिली, बट द मॉडल इटसेल्फ इज स्टिल ओके। आइडियलाइजेशन है ना, ज्यादा बड़ी आइडियलाइजेशन कर लिया आपने। जब आप आइडियलाइजेशन बढ़ाते जाते हैं आपकी कैप्चर्ड इंफॉर्मेशन कम होती जाती है, ठीक है। Any other questions? I'm done. मेरा टॉपिक फिनिश हो गया है। From next class we are going to start topic 2. So अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। नहीं सर। नो सर। ठीक है चलो बेटा, देन थैंक यू, आप लोगों ने इस क्लास को ज्वाइन कर लिया, एंड विल सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे, ठीक है, व्हेन वी स्टार्ट टॉपिक 2। मैं स्लाइड्स डाल दूंगा, मैं बुक भी अपलोड कर दूंगा। कोई क्वेश्चन हो तो जस्ट send me a message if you have something to ask, otherwise ask me on Monday, ठीक है। ओके सर। Okay, thank you, Allah Hafiz। ओके, थैंक यू।